A very good morning, dear student. Student, as you know, that at present trial balance chapter is going on, class 11 in accountancy. My dear student, these are the basic rule of debit and credit. Basically, we have the four rules of debit and credit. We should know that asset should be debit and liability should be credit. Assets should be debit and liability should be credit. And another rule is expenses debit and income credit. These are the rule. Basically, these are the four rules. Assets are debit, liabilities are credit, all expenses and losses are debit, all income and profit are credit. My dear student, जब भी अकाउंटेंसी में कोई टर्म यूज़ होती है तो या तो वो एसेट्स होगी या लाइबिलिटी होगी या इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा, इन चार में से एक होगा। और इन चार में से एक चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में। Dear student, already these some points we have discussed with you. Debit, assets, drawings, debtor is asset, expenses and losses. These are debit, and liabilities, capital, creditor, income and gains. These are credit. But basically हमें केवल एक रूल लर्न करना है कि all assets debit, liability credit, income and gain debit, income and gain credit, and all expenses and losses debit. These are the four things. इन चार चीज़ों में हमारा ट्रायल बैलेंस चलेगा. Dear student, now we will come on one example. This is the example. In this example, it is written, state whether the balance of the following account should be placed in the debit or the credit column of the trial balance. My dear student, you have to maintain the trial balance. You have to maintain the two column, one debit column, second credit column. और आपको ये सब चीज़ें बतानी है कि ये कहाँ पर आएंगी. These are the things: furniture, plant and machinery, discount allowed, salary, bank overdraft, cash in hand, creditor, Sunday debtors, carriage outward, carriage inward, sales, purchase, discount received and interest received and interest paid and bad debts. These are the 16 things. ये 16 चीज़ें हमारे पास हैं. And question is this: state whether the balance of the following account should be placed in the debit or credit column of the trial balance. My dear student, this is not the question of the trial balance. इस क्वेश्चन में केवल आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन चीज़ों को कहाँ पर रखेंगे, डेबिट में रखेंगे ट्रायल बैलेंस में या क्रेडिट में रखेंगे. तो हम इस बात को समझते हैं, विद रीज़न समझते हैं. बट वी शुड नो द रूल्स दैट एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, all expenses losses debit, all income and profit credit. These are the four things, and already many times we have discussed these four things. आज हम इसे अप्लाइड करेंगे. we will apply it in the trial balance. My dear student, ये 16 चीज़ों को हम अपने सॉल्यूशन में चेक करते हैं. देखिए 1 to 16. Now you can check. These are 16. Total 16 terms is here. 1 to 16. These 16 terms are here. But बिल्कुल क्लियरली हम इस बातों को समझेंगे कहाँ पर आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्नीचर. फर्नीचर, अब या तो फर्नीचर एसेट है या फर्नीचर लायबिलिटी है, या फिर फर्नीचर हमारा इनकम है या फिर कोई एक्सपेंसेस है. अब हमें समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ फर्नीचर बिजनेस. डेफिनेटली फर्नीचर इज़ अ वैल्यूएबल थिंग एंड फर्नीचर इज़ अ एसेट. माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन चेक दैट लॉजिक, that there is a logic that furniture is asset and asset should debit. asset debit होंगी इसलिए इन्होंने डेबिट पर टिक लगाया. इट्स मीन जब हमारे क्वेश्चंस होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको फर्नीचर को लिखना है. आपको ये लॉजिक का कॉलम आपको नहीं बनाना है, केवल आपको उसकी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में लेके जानी है. लेकिन अगर आपको पता है कि फर्नीचर इज़ अ एसेट, दिस इज़ अ लॉजिक, आपको ये लॉजिक पता है, तो डेफिनेटली आप उसका बैलेंस डेबिट साइड में पुट करेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी also a valuable thing and it is also assets. ये भी आपकी asset है. Now you can check second number, this is asset and definitely it should come in the debit side. asset है तो debit side में आनी चाहिए because rule assets debit, liability credit, all expenses losses debit, all income
एंड प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट। दीज आर द 4 थिंग्स। अगर ये 4 बातें बताएं तो आपका ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। आपको डेबिट और क्रेडिट में केवल अमाउंट को लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी, माय डियर स्टूडेंट, मशीनरी के बारे में हम सब जानते हैं, बट व्हाट इज अ प्लांट? जब दिस प्लांट मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरी, जब बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं और उसका एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम कहते हैं प्लांट्स। तो प्लांट एंड मशीनरीज। नेक्स्ट इज अ डिस्काउंट अलाउड। माय डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट हमें पता है, वी नो वेरी वेल अबाउट इट। डिस्काउंट से या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट को हमने अलाउड करा है, डिस्काउंट हमने दिया है। डेफिनेटली अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमें नुकसान होगा, लॉस होगा, एंड लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द लॉजिक एंड वी विल चेक दिस अ थर्ड थिंग। डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। तो इसकी अमाउंट डेबिट साइड में आनी चाहिए। डेबिट साइड में टिक लगाया, क्रेडिट साइड में टिक नहीं लगाया। नाउ वी विल कम ऑन द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अ सैलरी। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप सैलरी सोचोगे तो आप कहोगे भाई इनकम है हमारी, क्योंकि सैलरी हमें मिलती है, हम कहीं जॉब करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, आप एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचेंगे। एट प्रेजेंट यू विल थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बिकॉज अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बिकॉज यू आर द बिजनेसमैन, दैट्स वाई यू आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो आप एक बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सोचें तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन सैलरी प्रोवाइड करता है, एक एम्प्लॉयर सैलरी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सैलरी इज़ अ एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। तो माय डियर स्टूडेंट, एज अ ऑनर यू शुड थिंक, आपको ऑनर के अकॉर्डिंग सोचना है। तो सैलरी इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शुड कम इन द डेबिट साइड। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक overdraft. My dear student, bank overdraft is a liability and liability should be credit. Liability should be credit. तो you can check, then इसकी अमाउंट कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड में इसकी अमाउंट आएगी। बट माय डियर स्टूडेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट? माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं। एक्चुअली बैंक में आपके पास कुछ अकाउंट्स होते हैं, लाइक अ सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट ही ओपन करते हैं। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में मिलती है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं माय डियर स्टूडेंट, और करंट अकाउंट के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। ये एक्चुअली होता क्या है? सपोज आपके बैंक में 50,000 रुपये जमा है, टोटल बैलेंस ऑफ द बैंक बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज़ 50,000, लेकिन अचानक से आपको 70,000 की रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन विड्रॉ द 70,000 रुपीज़, बिकॉज बैंक में तो 50,000 रुपये पड़े हैं। तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट यू कैन विड्रॉ द 70,000 रुपीज़? इट इज़ पॉसिबल इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिल जाती है, उसकी एक लिमिट बात बता दी जाती है कि आप इस लिमिट तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, फालतू पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट टाइम में आपको शॉर्ट टर्म में आपको वापस भी करना होगा, एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो टू द बैंक। बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने पड़े कितने थे? हमारे टोटल अमाउंट इज़ 50,000 एंड आपने टोटल अमाउंट विड्रॉ कितना करा? 70,000। तो आपने ओवरड्राफ्ट 20,000 का करा। इन दैट कंडीशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज 20,000, क्योंकि जमा थे आपके 50,000, आपने विड्रॉ कर लिया 70,000, तो डेफिनेटली 20,000 जो आपने ओवर करा है, तो दैट कंडीशन इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। Why this is liability? Because this is a responsibility that you have to pay back to the bank. बैंक को वापस करना है, so this is your liability and liability should be credited. Now dear student, now we will come to the next point. Next point is a cash in hand. Cash in hand and cash at bank. यहाँ पर cash at bank नहीं है, लेकिन दोनों बातों को समझ लेते हैं। cash at bank का मतलब बैंक बैलेंस, बैंक में आपको कितना पैसा पड़ा है। cash in hand का मतलब what is a cash in hand, मतलब आपके लॉकर में, आपकी तिजोरी में, आपके घर पे, आपके बिजनेस में कितना पैसा रखा है, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड। एंड कैश इन हैंड इज एसेट बिकॉज इट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग। कैश एट बैंक ऑल्सो एसेट। अगर बैंक में पैसा है तो वो भी एसेट है, और आपकी तिजोरी में पैसा है तो वो भी एसेट है। तो एसेट शुड बी डेबिट। तो आप लॉजिक देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एसेट बताया, एसेट को डेबिट ही बताएंगे। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। सेवेंथ पॉइंट इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको मुझे पैसा देना है फ्यूचर में, तो ये हमारी लायबिलिटी होंगी। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो इन्होंने क्रेडिट साइड में दिस इज लायबिलिटी एंड इधर क्रेडिट साइड में इसकी अमाउंट को हम लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 8 पॉइंट, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री मीन्स मैनी, बहुत सारे। डेटर्स मीन्स वो लोग जो मुझे पैसा देंगे फ्यूचर में।
डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स, बहुत सारे डेटर हैं जो मुझे पैसा देंगे, डेफिनेटली ये हमारी एसेट बनेगी, वैल्यूएबल थिंग है, एसेट बनेंगे, बहुत सारे लोग मुझे पैसा देने वाले हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर इज अ एसेट एंड एसेट शुड कम इन द डेबिट साइड। नाउ वी विल कम ऑन द 9th पॉइंट। 9th पॉइंट इज अ कैरिएज आउटवर्ड और 10th पॉइंट है कैरिएज इनवर्ड। माय डियर स्टूडेंट, कैरिएज आउटवर्ड हो चाहे कैरिएज इनवर्ड हो, कैरिएज इज द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। आपने एक वर्ड अच्छे से सुना होगा, कैरी। आप हमेशा स्कूल में क्या करते हैं, बैग को कैरी करके लेके आते हैं, बैग को कैरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कैरी करते हैं। कैरी करने का मतलब किसी चीज़ को लाद के लेके आना, कैरी करना उसे। तो यहाँ पर जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको हम कैरी करवाते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ सामान है इसको कैरी करके आउटवर्ड लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, या फिर इनवर्ड लेके आओ। इसका मतलब रॉ मटेरियल अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड, और अगर सामान बन के बिजनेस से बाहर जा रहा है तो डेट कंडीशन इज अ कैरेज आउटवर्ड। मजदूर वही होगा, लेबर वही होगा, कभी वो अंदर सामान ढो रहा है, कभी वो बाहर के लिए सामान ढो रहा है, तो कैरेज इनवर्ड भी हो सकती है, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकती है। बट कैरिएज इज अ एक्सपेंसिस बिकॉज दिस अमाउंट वी शुड पे टू द वर्कर को हम पेड करते हैं, तो कैरेज इज अ एक्सपेंसिस। तो 9th and 10th पॉइंट इज अ एक्सपेंसिस एंड एक्सपेंसिस शुड कम इन द डेबिट साइड माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स। सेल्स मीन्स सामान बेचा, अगर सामान बेचेगा तो डेफिनेटली हमें क्या होगा, हमारी इनकम होगी, क्योंकि हम हमारा काम क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बना के उसे सेल आउट करना। दिस इज़ द मोटिव ऑफ अ बिजनेस कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोड्यूस समथिंग एंड देन वी विल सेल आउट इन द मार्केट। तो दिस इज अ कैरिएज सॉरी द 11th पॉइंट इज अ सेल्स। तो सेल्स इज अ इनकम। तो नाउ वी कैन चेक माय डियर स्टूडेंट, sales is an income and income should be credited. It's the income should be credited my dear student. Now we will come on the next point. Next point is a purchase. Purchase means अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हम रॉ मटेरियल करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसिस होता है और एक्सपेंसिस डेबिट होता है। Now we will come on the next point. Next point is a discount received my dear student. Discount received. अगर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, आपने डिस्काउंट किसी को दिया नहीं बट यू हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट, तो डेफिनेटली दिस इज इनकम और इनकम शुड बी क्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड करा तो ये भी आपकी इनकम है और इनकम शुड बी क्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड इज अ इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट आपने पेड करा है तो यहाँ पर आपका एक्सपेंसिस बनेगा। इंटरेस्ट पेड इज अ एक्सपेंसिस और एक्सपेंसिस शुड बी डेबिट। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्रेडिट होगी और यहाँ पर ये डेबिट हो गया, एक्सपेंसिस डेबिट होगा। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज द बैड डेब्ट्स। इन द जनरल एंट्री चैप्टर वी हैव डिस्कस द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि पैसा डूब जाना, तो डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे फ्यूचर में, पैसा डूब गया, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स इज अ लॉस एंड लॉस शुड बी डेबिट माय डियर स्टूडेंट। ये आपका तरीका है कि अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सीरियल नंबर, देन हेड टू अकाउंट्स। यहाँ पर अकाउंट्स के हेड्स देने हैं, जो भी आपने लेज़र बनाए, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट बनाए, लेज़र बनाए, वो सब नाम यहाँ पर देने हैं। देन उनके बैलेंसेस आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, ये दिस लॉजिक कॉलम विल नॉट कम, ये नहीं आएगा, बट इसमें समझाया जा रहा है कि दिस इज लॉजिक एंड दैट्स वाई दिस अमाउंट इज कमिंग द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो लॉजिक शुड बी क्लियर इन दिस पॉइंट। हमने लॉजिक क्लियर करा, बट अगर जब क्वेश्चन करेंगे, व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन, देन लॉजिक you will not write the logic, directly you will do the question. Thank you very much student, I hope you understood this concept and according to this you will do the questions my dear student. Thank you very much.